अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने आपके लिए एक केस प्रिपेयर किया है जो मैंने अपनी ओपीडी में देखा था। और ये मैंने कहा मैं आपके लिए करती हूँ। वैसे मेरा ख्याल है काफ़ी दफ़ा मैं हम एक दफ़ा तो मैं ज़रूर इसको डिस्कस कर चुकी हूँ ना। तो केस नंबर 26 करके मैंने डाल दिया। अच्छा, मैंने अपनी प्लेलिस्ट चेक की थी तो उसमें काफ़ी गलत सीक्वेंस और नंबर्स हुए हुए थे, तो मैंने उसमें कोशिश करी है कि मैं उसको सही कर दूँ, लेकिन जो अंदर लिखा हुआ है ना तो उसको तो मैं नहीं सही कर सकती क्योंकि वो तो अपलोड हो चुकी हैं। मतलब ये कि सिर्फ जो टाइटल है ना वो मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, दो उसमें से गायब हैं। मेरा ख्याल है केस नंबर 8 और 10, मैं नंबरिंग स्किप हो गई मुझसे, तो मैं 8 और 10 करके ना मैं फिर लगा दूँगी उसमें। मतलब ये कि नेक्स्ट जो करूँगी तो उसमें 8 और 10 को मैं कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, ये केस जो था ओपीडी में मेरे पास आई थी पेशेंट। अ 58-year-old woman came in my OPD with pain and swelling of left leg since 10 days. She was a known case of retroperitoneal metastatic cancer in the left psoas muscle of unknown primary since 1 year. She had undergone 8 cycles of chemotherapy. She had both sided hydronephrosis due to pressure by tumor. Both sides had placement of DJ stents with normal renal functions. She had no history of hypertension, diabetes mellitus, asthma or ischemic heart disease. On examination, well oriented and cooperative. Her blood pressure was 120 by 76 millimeter of mercury. Pulse was 78 per minute. Temperature was normal. Respiratory rate 14 per minute. Chest was clear with normal vesicular breathing. Abdomen was soft and non-tender. CVS and CNS examination unremarkable. Her left leg from thigh to the shin was tender, and her there was unilateral edema only on the left leg up to the shin. There was a mass felt on the left thigh and lymph nodes were enlarged and matted on the left inguinal region. Right leg was normal without any swelling or edema. Her hemoglobin was 11.2 gram per deciliter, MCV 84 femtoliters, TLC was 10,000, platelets 2,50,000. ESR were 100 millimeter in first hour, urea 38, creatinine 1.2, sodium 140 milliequivalent per liter, potassium 3.5, chloride 99, bicarbonate 24, LFTs bilirubin 0.9 milligram per deciliter, SGPT 18, SGOT 20, alkaline phosphatase 108, gamma GT 30, PT 12, control 12, APTG normal. She was advised Doppler ultrasound of the legs क्योंकि उतनी बड़ी उसका रिस्क फैक्टर था कि उसको कैंसर था, ठीक है। मेटास्टैटिक ट्यूमर 1 साल से डायग्नोज हुआ था, कीमोथेरेपी मिल चुकी थी, और जो है वो सिर्फ यूनिलैटरल उसको लेफ़्ट साइडेड एडिमा था शिन तक, और बहुत टेंडर था उसका थाई से लेके नीचे तक लेग, ठीक है। अब हमने तो जाहिर है मुझे यही शुबा हुआ कि डीवीटी ना हो, तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड लेग्स मैंने लिख के दे दिया उसको। उसमें आ गया एकोजेनिक थ्रोम्बस सीन द फीमोरल वेन ऑन द लेफ्ट साइड. Left common femoral vein is incompressible, showing minimal eccentric Doppler signals representing recanalization. Left common iliac vein not appreciated due to bowel gases shadows. Popliteal vein was patent, shows phasic variation with breathing and augmentation with distal pressure. Right leg was normal. Conclusion: partial deep vein thrombosis of left lower limb veins. No evidence of DVT on the right lower limb. अब थोड़ा सा मैंने आपके लिए DVT लिख लिया है, तो एपिडेमियोलॉजी देखें। वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म यानी VTE एनकम्पसेस डीप वेनस थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड कॉजेज कार्डियोवैस्कुलर डेथ, क्रॉनिक डिसेबिलिटी एंड इमोशनल डिस्ट्रेस, ठीक है। तो हमेशा DVT हो तो उसमें यही ख़तरा होता है कि वो थ्रोम्बस जो है वो एम्बुलस बन के वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ना चला जाए और पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर दे, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी है इसकी इन्फ्लेमेशन टेक्स सेंटर स्टेज एज अ ट्रिगर ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड DVT. Inflammation related risk factors and medical illnesses are now linked as precipitants of venous thromboembolism. अब इन्फ्लेमेशन जो है ना वो लिंक है, तो बहुत सारे प्रेसिपिटेंट्स हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन लिंक कंडीशन दैट कैन ट्रिगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड डीप वेनस थ्रोम्बोसिस. इसमें देखें आप इस चार्ट में अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस, obesity, metabolic syndrome, hypercholesterolemia, especially elevated LDL,
lipoprotein A, pneumonia, acute coronary syndrome, acute stroke, cigarette smoking, sepsis, septic shock, erythropoiesis, stimulating agents, blood transfusion, cancer. तो ये सब जो है ना जिसमें भी यानी कि इन्फ्लेमेशन हो रही है वो सब ट्रिगर कर सकते हैं डीप वेना थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म. प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट्स होती हैं. द two most common autosomal dominant genetic genes mutations are factor V Leiden, which causes resistance to the endogenous anticoagulant protein C. Number 2, prothrombin gene mutation, which causes the plasma prothrombin concentration, antithrombin, protein C and protein S that are naturally occurring coagulation inhibitors. Deficiency of these inhibitors are associated with venous thromboembolism, but it is very rare. Antiphospholipid syndrome is an acquired, not genetic thrombophilic disorder that predisposes to both venous and arterial thrombosis. Patients with antiphospholipid syndrome often warrants lifetime anticoagulation even if the initial venous thromboembolism was provoked by trauma or surgery. ठीक है, फिर भी आप उनको लाइफ टाइम करेंगे. अब क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स देख लें जिससे आपको पूछ रहे हैं अगर आपको शुबा हो रहा है तो रिस्क फैक्टर्स आप पेशेंट से कंफर्म करें. अब पहला है कैंसर. कैंसर तो था इस पेशेंट को तो ज़ाहिर है सबसे पहले ध्यान मेरा उधर ही गया. ओबेसिटी, सिगरेट स्मोकिंग नंबर 3, नंबर 4 हाइपरटेंशन, नंबर 5 COPD, नंबर 6 CKD, 7 लॉन्ग हॉल एयर ट्रैवल, नंबर 8 एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, नंबर 9 हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, नंबर 10 ट्रॉमा एंड सर्जरी, नंबर 11 सेडेंट्री लाइफस्टाइल. पॉलीजेनिक रिस्क फैक्टर्स होते हैं फैक्टर 5 लेटन एंड प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन प्रीडिस्पोज टू द रिस्क ऑफ venous thromboembolism बट इज़ वेरी रेयर. अब थोड़ी सी पैथोजेनेसिस की देख लें कि एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स अगर हो जाए ना, विर्चुअस ट्रायड ऑफ venous stasis, hypercoagulability and endothelial injury, usually coupled with an inflammatory trigger, leads to recruitment of activated platelets which release microparticles. These microparticles contain pro-inflammatory mediators that bind neutrophils, stimulating them to release the nuclear material and form web-like extracellular networks called neutrophil extracellular traps. These prothrombotic networks contain histones that stimulate platelet aggregation, promote platelet-dependent thrombin generation. जैसे ही प्लेटलेट एग्रीगेट होंगे और कोई भी प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होंगे तो वो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे को स्टिमुलेट कर देते हैं यानी कि कोगुलेशन के लिए. वीनस थ्रोम्बी फॉर्म एंड फ्लरिश इन दिस एनवायरनमेंट ऑफ स्टेसिस, लो ऑक्सीजन, टेंशन एंड अप रेगुलेशन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी जीन्स. अब इंटरैक्शन बिटवीन वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड एथीरोथ्रोम्बोसिस. अब ये एक नई चीज़ है जो मतलब अब ये साबित हो गई है. पहले इस एडिशन में मैंने पढ़ा वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जिसको हम कहते हैं रेड क्लॉट एंड आर्टीरियल थ्रोम्बोटिक वाइट क्लॉट उसे कहते हैं, वर प्रीवियसली कंसिडर्ड सेपरेट एंटिटीज़. ठीक है, यानी कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म अलग था, आर्टीरियल थ्रोम्बोटिक जो डिजीज़ है वो अलग समझते थे. हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ कैरोटिड आर्टरी प्लेक इज़ एसोसिएटेड विद डबल द रिस्क ऑफ इंसिडेंट ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. हालांकि कैरोटिड आर्टरी है उसमें अगर प्लेक है कोलेस्ट्रॉल का एथेरोस्क्लेरोटिक तो वो डबल कर देता है रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को. दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ ब्रॉड इंटरैक्शन ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म विद एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एंड विद एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक. Patients who suffer venous thromboembolism are more than twice as likely to have a future MI or stroke. Conversely, patients with MI or stroke are more than twice as likely to suffer a future venous thromboembolism. Embolization अगर हो जाए when DVT is detached from the site of formation, they embolize to the vena cava, right atrium, right ventricle and lodge in the pulmonary artery circulation, thereby causing pulmonary embolism. Many patients with pulmonary embolism have no evidence of DVT because the leg thrombus has already embolized to the lungs. आप मतलब ये कि pulmonary embolism किसी को हुआ डायग्नोज हो गया तो आपको उसकी लेग की अल्ट्रासोनोग्राफी डॉपलर कराना चाहिए देखने के लिए कि DVT थी कि नहीं. लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको नहीं होगी. वो जो थ्रोम्बस था वो वहाँ से निकल के और पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर चुका है तो अब वहाँ पे नहीं आ रही है. ठीक है, पैराडॉक्सिकली दीज थ्रोम्बी ओकेजनली एम्बोलाइज टू द आर्टीरियल सर्कुलेशन थ्रू अ पेटेंट फोरामेन ओवेल और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. अगर किसी में हो तो ये रेयरली फिर जो है आर्टीरियल सर्कुलेशन में भी जा सकता है.
फिजियोलॉजी क्या होती है? द मोस्ट कॉमन गैस एक्सचेंज abnormalities आर arterial hypoxemia and the increased alveolar arterial oxygen tension gradient which represent the inefficiency of oxygen transfer across the lung. Anatomic dead space increases because breath gas does not enter gas exchange units of the lung. Physiologic dead space increases because ventilation to gas exchange units exceeds venous blood flow through the pulmonary capillaries. अब इसमें क्या होता है, मतलब वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाएगा ना, यहाँ के जो एल्वियोला हैं उनके गेट कैपिलरीज हैं. अब अगर कैपिलरीज पेटेंट ना हो तो वहाँ पे अगर एल्वियोलस में ऑक्सीजन आई है तो वो कहाँ जाएगी? तो वहीं रहेगी ना. मतलब ये कि वो तो मिसमैच हो गया. वहाँ पे जो एल्वियोलस खुला हुआ है उसकी कैपिलरी बंद है पल्मोनरी, और जो कैपिलरी खुली हुई है लेकिन एल्वियोलस ही कोलैप्स है, तो कहाँ से होगा? ये होता है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच. तो ये हो जाता है इसमें. ठीक है. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन फिर क्या होती है? डीवीटी की तो क्रैम्प इन द लोअर लेग होता है और फिर एडिमा होता है साइंस का. पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जो है अनएक्सप्लेन्ड ब्रेथलेसनेस होती है. ठीक है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म. डीवीटी की क्या होगी? रप्चर्ड बेकर सिस्ट हो सकती है, मसल स्ट्रेन इंजरी हो सकती है, सेल्यूलाइटिस हो सकता है, एक्यूट पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, वीनस इनसफिशिएंसी हो सकती है. पल्मोनरी एम्बोलिज्म की क्या है? निमोनिया, एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पेरिकार्डाइटिस, प्लूरिसी, वायरल सिंड्रोम, रिब फ्रैक्चर, नीमोथोरेक्स, एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम, एंग्जाइटी, वेजोवेगल सिनकोपी. ये सब इसकी डिफरेंशियल है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की. इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे? अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ हुआ है ना, तो मतलब इकट्ठा करके मैंने लिख लिया था, यानी कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को. ठीक है. तो डी डाइमर्स इंक्रीज ड्यू टू breakdown of fibrin by plasmin. Sensitivity is more than 95% for pulmonary embolism. A normal test rules out pulmonary embolism in patients with low pre-test probability. Elevated cardiac biomarker serum troponin increase हो सकता है ड्यू टू RV micro infarction. ECG में sinus tachycardia मिल सकता है आपको, और कैरेक्टरिस्टिक होता है S1 Q3 T3 पैटर्न ECG में, यानी कि S wave in lead 1, Q wave in lead 3 और T वेव इन्वर्जन होते हैं लीड 3 में. नॉन इन्वेजिव इमेजिंग मोडेलिटीज़ कौन कौन सी हैं? एक वीनस अल्ट्रासोनोग्राफी डॉपलर आपने करा लिया, जो मैंने कराया था, उसमें नॉन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वेन्स अगर आ जाए तो वो डीवीटी की निशानी होती है. नंबर 2, चेस्ट एक्सरे करा लें. पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो नॉर्मल हो सकता है. ठीक है. लेकिन कराएंगे आप, ज़ाहिरी बात है कि तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी एक्सक्लूड हो जाएंगी. कुछ दफ़ा होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में फोकल ओलिगीमिया होता है, तो पेरिफेरल ट्रायंगुलर शेप डेंसिटी आ जाती है उसमें. उसको कहते हैं वेस्टर मार्क साइन. और अगर पेरिफेरल ट्रायंगुलर शेप्ड डेंसिटी होती है लोकेटेड द प्लूरल बेस को हैम्पटन्स हम कहते हैं, एंड एन एनलार्ज राइट डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी, उसको पहला साइन कहते हैं. फिर चेस्ट सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी विद इंट्रावीनस कंट्रास्ट इज द प्रिंसिपल इमेजिंग टेस्ट फॉर डायग्नोसिस. लंग स्कैनिंग, वेंटिलेशन, परफ्यूजन. लंग स्कैन इज सेकेंड लाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यूज मोस्टली फॉर पेशेंट्स हु कैन नॉट टॉलरेट इंट्रावीनस कंट्रास्ट. Magnetic resonance contrast enhanced imaging, MR imaging when leg or pelvic ultrasonography is in equivocal. Magnetic resonance venography with gadolinium contrast is an excellent imaging modality to diagnose DVT. Echocardiography not a reliable diagnostic test for pulmonary embolism, उसमें normal भी आ सकता है. However, it is very useful for detecting conditions that may mimic pulmonary embolism. तो बहुत सारी चीज़ें आप exclude कर सकते हो उससे. Number 7, invasive diagnostic modalities. Pulmonary angiography with contrast has virtually replaced chest CT pulmonary angiography as a diagnostic test. पहले gold standard था ना pulmonary angiography, अब जो है CT guided pulmonary angiography जो है वो diagnostic है. फिर कंट्रास्ट फ्लैबोग्राफी, वीनस अल्ट्रासोनोग्राफी हैज़ वर्चुअली रिप्लेस्ड कंट्रास्ट फ्लैबोग्राफी. पहले हुई करती थी, अब जो है हम आराम से वीनस अल्ट्रासोनोग्राफी डॉपलर अल्ट्रासाउंड में कर लेते हैं, तो अब इस नहीं कराते ये. अब ये एक चार्ट है, हाउ टू डिसाइड वेदर डायग्नोस्टिक इमेजिंग इज़ नीडेड. सस्पेक्ट अगर आप कर रहे हैं डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, असेस क्लिनिकल लाइक्लीहुड, यानी कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना जो मैंने आपको बताया, अगर वो हैं
तो डीवीटी है अगर लो, अगर लाइक्लीहुड है तो डी डाइमर करा लीजिए। डी डाइमर नॉर्मल आ जाते हैं तो डीवीटी नहीं हो सकती। डी डाइमर हाई आ गए तो इमेजिंग टेस्ट नीडेड। अच्छा उसमें जो है यानी कि आप फिर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करा लें। पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं और क्लिनिकल लाइक्लीहुड हाई नहीं है तो डी डाइमर कराइए। नॉर्मल आ गए तो नॉट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर हाई आ रहे हैं तो इमेजिंग टेस्ट आर नीडेड। ठीक है, इस तरह से करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डीवीटी क्या है? एंटीकोगुलेशन और कंप्रेशन स्टॉकिंग्स टू लेसन पेशेंट्स डिस्कम्फर्ट। अच्छा, एंटीकोगुलेशन जो है अब मोनोथेरेपी भी कर सकते हैं आप। पहले तो पेशेंट को दाखिल करना पड़ता था और मतलब उसमें पहले आप एंटीकोगुलेशन में क्या है कि अगर आपको ओरल पे ज़ाहिरी बात है कि लेके जाना होगा ना, तो अगर आप वॉरफेरिन दे रहे हैं जैसे हम पहले देते, तो वॉरफेरिन 5 to 7 डेज़ के बाद एक्ट करनी शुरू करती है। तो फिर तरीका ये होता है कि पेशेंट को आप या तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन शुरू करा दें, ठीक है, 5 डेज़ तक दें, यानी कि ब्रिजिंग आप कर दें, और उसी के साथ जो है आप वॉरफेरिन भी शुरू करा दें। फिर 5 डेज़ के बाद आप सबक्यूटेनियस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आप बंद कर देंगे और जो है फिर आप इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसी वक्त आप शुरू करेंगे जब आपने पेशेंट को पहले दिन जब वॉरफेरिन स्टार्ट करेंगे उसी टाइम जो है आप जब आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देंगे उसी टाइम आप ओरल एंटीकोगुलेशन स्टार्ट कर देंगे वॉरफेरिन के साथ, या आप अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन भी दे सकते हैं इसकी जगह। दूसरा होता है कि फोंडापेरिनेक्स जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन पेंटासैकराइड होता है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, वो आप देते हैं और वो भी आप 5 दिन तक देंगे। ठीक है, और उसके साथ आप वॉरफेरिन स्टार्ट कर देंगे। या तो ये तरीका होता है, या फिर आप डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं। उसमें जो है रिवारोक्सिबेन आप दे सकते हैं। तो इस पेशेंट को मैंने रिवारोक्सिबेन दिया और कंप्रेशन स्टॉकिंग इसको लगवा दिया कि दिन भर ये पहने रात में उतार दे। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आप पहले इनिशियल डोज जो है ना रिवारोक्सिबेन की 15 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे होती है फॉर 21 डेज़, और उसके बाद 20 मिलीग्राम ओडी होती है फॉर इंडेफिनिट पीरियड, क्योंकि इसको तो ये मतलब मसला हुआ है ना। तो बाकी मैंने इसमें इतना तफसील से लिखा नहीं है सारा कुछ, ट्रीटमेंट तक टाइम नहीं था मुझे, रात को ही मैंने बनाया। तो आप मैं सब करा चुकी हूँ उससे पहले भी जो ना, उसमें आप देखिए और इसी वक्त आप इसको याद कर लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर ब्लीडिंग होने लगेगा, यानी कि हम फिर वॉरफेरिन अगर दे रहे हैं तो पीटी आईएनआर करवा के हम देखते रहेंगे ना। तो 2.5 to 3.5 जो आईएनआर है ना उस रेंज में रखना है आपको, वरना तो आप डोज कम करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, अगर इसके अंदर भी आ रहा हो तब भी इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो सकती है। तो अगर हो जाए ब्लीड, अल्लाह ना करे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो अगर मतलब हेपरिन अगर आप दे रहे थे और ब्लीड हो गई है। अच्छा, फोंडापेरिनेक्स जो है ना उससे वो नहीं होता, हिट नहीं होता। हिट यानी कि हेपरिन इंड्यूस्ड क्या है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं होता उससे। ठीक है, हेपरिन उससे होता है। तो फिर आप इनिशियल अगर थोड़ी बहुत हुई है तो प्रोटामीन सल्फेट देंगे अगर आप हेपरिन दे रहे थे और ब्लीडिंग हो गई, और फिर उसके बाद जो है आप नॉर्मली वो दे सकते हैं, यानी कि फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, विटामिन के, ठीक है, स्टेबलाइज करते पेशेंट को। सही है, तो ये इसका है। तो ये मैंने ट्रीटमेंट आपके लिए इतना बड़ा नहीं लिखा था। अच्छा, फिर रेफरेंस मैंने वहीं से लिया है, यानी कि हैरिसन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन, और इसका जो एडिशन है 22 है और ईयर जो है वो 2025। ठीक है, प्लीज़ आप लोग जो है ना ज़रूर मुझे कमेंट, कोई करता नहीं है तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफ़िज़।